ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, देख के बताओ। यस सर। ओके, अगर वॉइस ब्रेक हो जाता है तो बता देना, ठीक है। सो एक काम करते, आज स्टार्ट करते नया चीज। सो तुम लोगों को पता ही है व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। डू यू नो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म? एनीवन? क्वाड्रेटिक फॉर्म, Quadratic form and cubic form. Y equal to x plus y equal to a plus bx plus yeah. cx square. Okay, so that is suppose y equals to a plus bx plus cx square. That is a equation of a, that is a quadratic equation. Okay, and Sir, y equals to x prime ax. x does x. Yeah, correct. So mostly, suppose we have a matrix A that is equals to Aij. We have a matrix A which is symmetric. First is it is a symmetric matrix. And we have a variable set that is x. Suppose that is x1, x2, xn. Okay, as transpose. So in that case, we can write a function qx. The function of x, that is qx equals to x dash ax, which is equals to summation aij xi xj. So we have a matrix A which is symmetric, and it is a k cross k matrix. Okay, it is a k cross k matrix. So we have a double summation over I equals to 1 to k and j equals to 1 to k. So that qx, or you can say it is a quadratic form of the matrix A. Okay, it is a, that qx is a quadratic form of matrix A. That's the setup of a quadratic form. Okay, so now in that scenario we are going to derive the distribution. Suppose x follows normal distribution. Okay, then what will be the distribution of this quadratic form x dash ax? Okay, this type of things will be derived in that class. Okay, so basically पहले हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा इसका जो प्रॉपर्टीज है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि गेट में इसका प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आया है पिछले बार भी। ठीक है, तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, उसका प्रूफ पे हम उतना घुसेंगे नहीं, जस्ट ये याद रखो। ठीक है, जितना भी प्रॉपर्टीज हम इधर मार्क करके जा रहे हैं, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस प्रॉपर्टीज, दैट विल बी इनफ। ओके, now in that case, suppose we are assuming that A is a symmetric matrix. So what will happen if A is not a symmetric matrix? So what will happen is, if A is not a symmetric matrix, then, so if A is not symmetric, then we can have a replacement of A, that is A plus A transpose divided by 2. That is the replacement of A if A is not symmetric matrix. Because we all know that we can write any matrix in a symmetric and plus q symmetric format, right? So we are doing the same thing. We are having A and A transpose, and we are just using this formula in the case when A is not symmetric matrix. Okay, okay, fine. Next point is positive definiteness, that is qx. It is a positive definite matrix if qx that is greater than 0. qx का मतलब क्या है, x dash ax that is strictly greater than 0 for all x belongs to Rk. Okay,
So, and we can have a semi-definite case, positive semi-definite matrix if qx that is greater than equal to 0 for all x belongs to a K. So here you have to remember the thing that if it is a negative definite matrix, so in that case there may be some issues can be arised. Okay, so mm, it is necessary to have a positive definite matrix A. Okay, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब ओएलएसी किया था तो इस टाइम हम लोगों ने देखा था कि डबल डेरिवेटिव जो बन रहा था वो होना चाहिए था क्या क्योंकि मैक्सिमाइज कर रहे थे हम लोग ना, तो लेस देन 0 होना चाहिए था उस टाइम। तो ये सब चीज के लिए हम लोगों को ये सब पॉजिटिव डिफिनेट है कि नेगेटिव डिफिनेट है क्या, उसका कैसे फॉर्मूला कैसा है वो थोड़ा एक बार याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ इमेजिन अ केस वेयर B is a non-singular matrix. B K cross K, same thing, same row number of same number of column. It is a non-singular matrix. Assume that B is a non-singular matrix. Then Q star Y. We are taking a new quadratic form of matrix A, which is equals to Y dash B dash A by. So here we have added b dash and b. Okay, so y dash b dash a by, that will also be a positive definite, that is positive definite if and only if, okay, that is a both side condition, if and only if qx equals to x dash ax is positive definite. So if we are having a any other form of x, that is in that case we are assuming x equals to by, right? So if you were having any other cases, you can also prove that function is also positive definite if and only if the qx equals to x dash ax, that is positive definite. That is very important theorem. Okay, इसका भी proof है, लेकिन इसमें जान रखिए कि हम लोगों को चाहिए क्या, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन these things. Okay, fine. So next important thing is, suppose we have a symmetric matrix A. A is positive definite, that A is positive definite if and only if, again there is another more condition you can assume, if and only if the eigenvalues of the matrix A, that all are positive. If all the eigenvalues of matrix A is positive, then that matrix is positive definite. Okay, so if and only if its eigenvalues are all positive. So in that case तुम लोग I think eigenvalues निकाल लोगे ना पक्का? eigenvalues a minus lambda I, इसका जीरो करके इसका डिटर्मिनेंट निकल के लैम्डा का वैल्यू निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, eigenvalues हो जाएगा। क्या ठीक है ना? हेलो, यस सर, यस सर, साउंड आ रहा है ना ठीक ठाक? यस सर, बेटर है पहले से। ओके ठीक है चलो। तो that thing we have to do for finding the eigenvalues of a matrix A. So here we are assuming A, which is a symmetry matrix, that is positive definite if and only if the condition is that key its eigenvalues are all are positive. So suppose in that case, suppose eigenvalue lambda I equals to 0. Suppose we are getting it. Suppose we are getting lambda equals to 0. So in that case, all the eigenvalues are positive or 0 and the matrix will be positive semi-definite. So suppose a eigenvalues is 0. Okay, so in that case it will be a
positive semi-definite. So A will be positive semi-definite if and only if its eigenvalues are non-negative. So in case of non-negative eigenvalues, so in that case we will get a positive semi-definite matrix. So these are all properties of A. Okay, ये जो A है ना, इसका properties जाना बहुत जरूरी है कि बाद में जब हम इसका distribution निकालेंगे, अगर if we have defined A, the distribution will not followed. Okay, वो याद रखना जरूरी है, ठीक है. एक और thing, rank of A, that is also very important point. Rank of A, उसका rank क्या होगा? Non-zero eigenvalues. So number of non-zero eigenvalues is the rank of A. Okay, another point ये भी याद रख सकते हो कि अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, सो अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, उसका मतलब क्या सर है? जो लिखा है रैंक A ऑफ ए squared equals to A, नंबर ऑफ right? नॉन जीरो आइगन वैल्यू. ऐसा हेलो रैंक ऑफ ए तो सर ने आपने रैंक ऑफ ए डिफाइन किया है नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ये हर केस में ट्रू है हाँ. सर. रैंक ऑफ ए नहीं, जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसलिए. अच्छा, If A is सिमेट्रिक a, मैट्रिक्स में जितने भी नॉन जीरो रो आइगन वैल्यू आएंगे उतने रैंक होंगे. जितने भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा उतना रैंक होगा उसके लिए. ओनली फॉर जैसा कि तुम अगर निकलोगे ना, एक होता है फॉर एग्जांपल तुम्हारा ना 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 ट्रेस तो अलग होगा ना. हाँ, यही अगर ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, तो उसका नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होगा रैंक ऑफ ए. ओके सर. Okay, fine. Now we are talking about an idempotent matrix A. So if A is an idempotent matrix, then all the eigenvalues क्या होगा बताओ? 0 बता 1. सकते हो? इधर जीरो और वन. either zero होगा और वन होगा, ठीक है. ये ऐसा मतलब जैम में इसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आया था, ठीक है. बहुत लोग इसको गलत करके आ गया था, ट्रेस और आइगन वैल्यू को मिक्स कर दिया था. मतलब यूजुअली ऑप्शन में ऐसा आता है कि ट्रेस और आइगन वैल्यू को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो लोगों को उसमें दिक्कत होता है. तो ये याद रखना, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 होता है, ठीक है. फाइन. ओके, फिर सपोज वी हैव अ सिमेट्री मैट्रिक्स A which is idempotent, and suppose rank of A equals to R. Okay, A is idempotent. Okay, ध्यान से सुनना, A is idempotent and the rank of A equals to R. Then how many 1 will be there and how many 0 will be there? There will be, so in that case ध्यान से सुनना, if this is the idempotent matrix A k cross k, it is the idempotent matrix, rank of A equals to R, then A will have R number of eigenvalues equal to 1 and minus R eigenvalues equals to 0. Okay, that is the important point. So eigenvalues either, आवाज कट रही है सर. hello, so आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है. हाँ ठीक है, हेलो. तो अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? यस सर. Okay, हाँ. So if A has the rank R and A is the idempotent matrix, then the eigenvalues that are equals to 1, how many eigenvalues equals to 1?
आर आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल्स टू 1 एंड बाकी जितना आइगन वैल्यूज होगा वो 0 हो जाएगा। तो k माइनस आर आइगन वैल्यूज विल इक्वल टू बी 0। यस करेक्ट? सर। यस को समझ में आ रहा है ना? ये देखो, अगर किसी को डाउट है, मतलब ये जो अभी तक जितना भी हम कर रहे हैं ना, तो समझ लो, प्रूफ में मत जाओ, जस्ट ये थिंग जो है पॉइंट्स याद रखो। मैंने ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा डिटेल में नहीं डिस्कस करो, क्योंकि उतना डिटेल्स में डिस्कस करने वाला चीज है नहीं ये, ठीक है? प्रूफ करेंगे तो फालतू फंस जाएंगे, टाइम बहुत निकल जाएगा उसमें, ठीक है? तो यस जस्ट सर। जो भी थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा देख लो धीरे धीरे करके, जितना भी पॉइंट है। हाँ, ओके फाइन। नेक्स्ट जो थिंग है, अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, रैन अभी हो गया ये, अभी इतना काफी है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, धीरे धीरे करके मीन, वेरिएंस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब में चलते हैं, ठीक है? तो सपोज k इज द सॉरी x इज द random vector, that is random vector, and expectation of x that is equals to mean, and variance of x that is equals to sigma. Okay, so suppose we have, that is x is a random vector and we have mean, we have variance. Okay, then what will be expectation of x dash x? So that will be equals to, देखो अच्छे से देख लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x डैश x, इसका मतलब है ट्रेस ऑफ एक्सपेक्टेशन x डैश x। एक्चुअली क्या है ना, इसका अगर डायगोनल एलिमेंट जो है उसी का हम एक्सपेक्टेशन में डाल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा ना, वो तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है? और सर ये भी तो डिकम्पोजिशन बोल होके सकते हैं जो x डैश ax है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका ट्रेस लेंगे तो बराबर ही रहेगा, ट्रेस ले या ना ले। बराबरी, हाँ बराबरी रहेगा ये भी। हाँ, ट्रेस ऑफ तो कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ट्रेस कांस्टेंट इक्वल्स टू, हाँ कांस्टेंट। सो इन दैट, नो, ये अभी हम क्या करेंगे ना, अभी एक्सपेक्टेशन को बाहर निकल के लेके आएंगे, ठीक है? अभी एक काम यस करेंगे, सर। एक्सपेक्टेशन को बाहर निकल के लेके आएंगे और ट्रेस को अंदर कर देंगे, ठीक है? तो इन दैट केस, सो ये तो वही प्रॉपर्टी देगा सम व्हाट ऑफ ट्रेस वाला ना सर। इज ट्रेस, ये लिख सकते हैं, इस राइट? सम ऑफ ट्रेस का कॉन्सेप्ट लग जाए ना सर। सम ऑफ ट्रेस का, जैसे ट्रेस ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ a1 प्लस ट्रेस ऑफ a2, जो एक्सपेक्टेशन हाँ, अंदर बाहर किए हैं। वो तो इसे लिख सकते हो ना, मतलब इसका जो रीजन होगा एक्सपेक्टेशन का, वो रीजन है ना? यस उसी सर। उसी वजह से बाहर कर रहे हैं हम। हाँ, वो यस तो है सर। ही, वो तो इजी है बहुत। ये बात ऐसा है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स ट्रेस ऑफ बी, ये लिख सकते हैं, यस सर। ये वाला टर्म। तो अभी हम क्या यस सर। करेंगे, वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड एक्स बार, एंड उसके बाद एक्स बार एंड सॉरी एक्स हैट एंड एक्स डैश एंड एक्स, सो दैट बिकम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ trace of a x dash x. Since we have this, we have the equation 1, trace of ab equals to trace of ba. इसको चेंज करके लिख सकते हैं ऐसा। तो यस सर। a तो बाहर निकल, क्योंकि a is, in that case a is constant, and we can write trace of, like we trace of a of expectation of x dash x, ये लिख सकते हैं। फिर से मैंने यस सर। ट्रेस को यस बाहर सर। निकल के आ गया, क्योंकि सेम जो मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये जो है ये सेम फॉर्मूला यूज करके लेके आ गया इधर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, इसमें समेशन ओवर दैट टर्म ना, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस। नाउ वी कैन राइट, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डैश एक्स, इसका मतलब है कोवेरिएंस ऑफ एक्स ना, कोवेरिएंस छोड़ो, वेरिएंस ही लिख लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स एक्स, ये छोड़ो, इसका मतलब क्या, सिग्मा एक्स एक्स से मतलब, उसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ
x dash x minus expectation of x into expectation of x dash. Right? We can write expectation of x dash x minus expectation of x into expectation of x dash. So from here we can write expectation of x dash x minus mu mu dash. So obviously we can write trace of a into Sir, your presenting is sigma off. xx Your screen is off, of sir. नेटवर्क इशू है लग रहा है. फिर ए तो मैट्रिक्स है ना, तो वो ट्रेस से बाहर कैसे आया? एक सेकंड आ गया. हाँ, कौन क्या बोला तो बताओ फिर से एक बार. हेलो, ट्रेस से बाहर कौन सा था, क्या पूछ रहे थे बताओ एक बार फिर से. सर स्क्रीन नहीं दिख रही. नहीं दिख रही अभी भी? नो सर. ओके रुको. नहीं, वो ट्रेस से बाहर नहीं आया है. वो वाला टर्म मतलब ए जो तुम पूछ रहे थे ना, ए मैट्रिक्स, वो ट्रेस से बाहर नहीं है, एक्सपेक्टेशन से बाहर आया है. देखो स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं बताओ. यस सर. हो रहा है ना, ठीक है, ओके फाइन. ये देखो मैंने ए को ट्रेस से बाहर लेके नहीं आए हो अभी तक. ट्रेस से बाहर आएगा भी नहीं हो. यस सर. है ना? बस एक्सपेक्टेशन से बाहर है क्योंकि क्लियर? कांस्टेंट है. हाँ, एक्सपेक्टेशन से एग्जैक्टली. एक्सपेक्टेशन किसके ऊपर कर रहे हैं? एक्स के ऊपर कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट हो रहा है ना ए टर्म. तो ए एक्सपेक्टेशन से बाहर है, लेकिन ट्रेस से बाहर नहीं आएगा. वो हम ट्रेस से बाहर नहीं लेके आ सकते. हाँ, सर ये ट्रेस ऑफ एक्स डैश ए एक्स है ना, तो वो ए बी सी हो गया, तो एनी टू वेरिएबल कैन बी इंटरचेंज, मतलब वो थर्ड ओके. स्टेप. हाँ, देखो 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 देखो, ट्रेस ऑफ एक्स है ना, इसके जगह हम लिख लेते हैं ट्रेस ऑफ. अच्छे से देख लेना, ठीक है. एक्स डैश लिख सकते हैं ऐसा, इसको एक्सचेंज किया, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, इसको और इसको एक्सचेंज कर रहा हूं. देखो, ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स डैश एक्स. पहला जो था, पहला टर्म था, उसमें एक्स डैश अनचेंज था. ये नंबर 2 दोनों को चेंज किया. दूसरे टर्म पे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, चेंज किया. ऐसे और ऐसे तुम कर ये भी सकते हैं चेंज क्या कर सर? सकते हो. सर ऐसे ना हाँ, करेंगे. एक्स डैश हमारा ए है, ए एक्स आपका बी क्योंकि है, तो ट्रेस बी. ऑफ ए बी, सो ए, हाँ, ए इक्वल्स टू एक्स डैश पकड़ लो, बी इक्वल्स टू ए एक्स पकड़ लो. दोनों तो मैट्रिक्स है ना इसमें, यस सर. तो राइट? जो जैसा आपने Okay. सेकेंड लाइन में किया वो तो पॉसिबल नहीं, ऐसे तो नहीं होता है ना. कौन सा बताओ? जो सर सेकेंड लाइन लिखा आपने, एक्स डैश ए एक्स को आप लिख रहे हैं एक्स डैश एक्स ए. ये कैसे हाँ, पॉसिबल इसमें है? मैंने कौन सा इंटरचेंज किया? एक सेकंड. इसमें कौन सा मैंने एक्सचेंज किया बताओ? इसमें एक्सचेंज किया मैंने, अच्छा मैंने इसको गलत एक्सचेंज कर दिया ना. इसका जगह होगा, वो गलत है. बस यहाँ पे एक ही हाँ, पॉसिबिलिटी है. इसके जगह कौन सा एक्सचेंज होगा बताओ? इसका और ये, तो होगा ए एक्स इंटू एक्स डैश, ऐसा होगा ना. ए एक्स इंटू एक्स डैश. हाँ, क्योंकि मैंने इधर क्या किया, मैंने इधर लिया है ए इक्वल्स टू, मतलब इधर जो ट्रेस ऑफ ए बी, इसको ट्रेस ऑफ ए की ना बोल के लिख दो, अलग कुछ नाम लिख के दो. ट्रेस ऑफ ए मेन दैट इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ एन एम. ओके, सो हियर वी कैन एज्यूम ए इक्वल्स टू एक्स डैश एंड एन इक्वल्स टू ए एक्स. ये पकड़ के देखो हो रहा है कि नहीं. हो रहा है ना?
सर ये ट्रेस ऑफ एक्स एक्स डैश ही होगा, एक्स डैश एक्स नहीं होगा ऊपर भी। कहा, अच्छा ट्रेस ऑफ, हाँ राइट 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 राइट, इधर क्या चेंज होगा, एक्स एक्स डैश होगा ना, एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, एक्स एक्स डैश, हाँ 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 हाँ, ये पूरा एक्स एक्स डैश ही होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश, राइट। अभी ठीक है ये टर्म, यस सर। ओके। सो अभी बताओ ये क्या होगा लास्ट में जाके, ए सिग्मा एक्स एक्स हो जाएगा, उसके प्लस कौन सा टर्म ऐड होगा, म्यू प्लस डैश म्यू म्यू डैश, राइट। सो नाउ यू कैन राइट ट्रेस ऑफ ए सिग्मा एक्स एक्स प्लस म्यू, उसके बाद ए, सॉरी नहीं ऐसा नहीं लिख ट्रेस सकते, ऑफ क्या ए लिखना म्यू म्यू पड़ेगा, डैश, ट्रेस हाँ ऑफ ए म्यू ट्रेस म्यू ऑफ डैश, ए म्यू म्यू डैश, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको फिर से बी ए कर सकते हैं तो म्यू डैश ए म्यू आ जाएगा, तो ट्रेस इसका यहाँ से हट मतलब हो जाएगा। जाएगा म्यू डैश ए म्यू, हाँ और ट्रेस हट जाएगा, राइट। सो इसका मतलब हो गया ट्रेस ऑफ ए सिग्मा एक्स एक्स प्लस म्यू डैश ए म्यू, so that is the expectation of x dash ax, ठीक है, that is very important result, okay, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। यस सर। Okay, fine. So, abhi suppose we are considering a distribution that is x follows. Suppose we are considering a normal variable with expectation of x equals to mu and variance of x equals to 1. ठीक है, अभी पहले एक काम करते हैं, तुम लोग ये मुझे बताओ, suppose we are considering x normal with expectation x equals to mu, variance of x equal to 1, and suppose v equals to x square, then what will be the distribution of v, नॉन सेंट्रल का बताओ, स्क्वायर, नॉन सेंट्रल नॉन होगा ना, सेंट्रल का हाँ स्क्वायर। नॉन सेंट्रल का स्क्वायर with degrees of freedom 1 and the non-centrality parameter that is lambda square equals to mu square, right, ओके, है ना ये, ठीक है ना, गलत लिखा क्या मैंने, नॉन सेंट्रल पैरामीटर के बारे में आइडिया नहीं है सर। हाँ तो क्या बोल रहे हो, नॉन सेंट्रल, ए क्या नॉन सेंट, क्या बोल रहे हो, नॉन सेंट्रल का स्क्वायर नॉन सेंट्रल ए नहीं पढ़े हो तुम लोग, इसमें याद नहीं है नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर क्या होता है सर। अरे यार, देखो सर मतलब फॉर ये म्यू एग्जाम्पल स्क्वायर ही होगा ना, मैं सपोज, श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ ये जो लेमडा नॉन स्क्वायर इक्वल्स सेंट्रलिटी टू म्यू पैरामीटर क्या स्क्वायर होता लिख, है, यस सर। छोड़ो वो छोड़ो, बताओ नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर क्या होता है, हाँ अभी सर याद नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, जब सेंटर का स्क्वायर होता है ना, उस टाइम वी हैव ओनली वन पैरामीटर दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। यस सर। सो अभी अभी क्या है ना, अभी जो नॉन सेंट्रल का स्क्वायर हो रहा है, नॉन सेंट्रल का स्क्वायर में क्या है कि मीन इज देयर, राइट, क्योंकि हम लोगों ने मीन को तो हटाया नहीं है ना, मीन को तो नहीं हटाया ना, नहीं, ठीक है ना, तो वो जो टर्म है उसके वजह से वी हैव we can say like suppose we are considering a normal distribution mu comma 1, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सपोज x follows this, so
If you consider x minus mu, that will be normal 0 1, right? So अभी क्योंकि मीन को नहीं हटा है, क्योंकि इसके वजह से we have to add one more parameter, that is non centrality. तो वही उसी को ही हम लोग लैम्डा बोल रहे हैं कि म्यू स्क्वायर आ रहा है ना? So if you are having a non-central chi-square like this x1 x2 dot 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 xn follows normal mu1, so in that case you will be having b equals to summation xi square I equals to 1 to n, that will follow chi-square distribution with the non-centrality parameter, that is equals to summation lambda square equals to summation I equals to 1 to n mu y square. Okay, suppose y comma 1, right? So that is the non-centrality case thing. Okay. और कुछ नहीं, मतलब non-centrality parameter जो lambda, it is a function of all the mu i's, जितना भी मीन पैरामीटर्स है उसका फंक्शन है ये. सर इसका पीडीएफ क्या होगा? नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर का? यस सर. नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर का पीडीएफ है fx comma degrees of freedom, suppose it is k comma and non centrality equal to lambda, that is summation तुम्हारा e to the power minus lambda by 2 का माना lambda by 2 to the power m by m factorial, m equals to 0 to infinity f of एक और फंक्शन होगा, मतलब f of y x, where y is the chi square with कितना डिग्री में n degrees of freedom. सपोज इसका मीन कितना होगा सर? नॉन सेंट्रल पैरामीटर का मीन और वेरिएंस क्या होगा इन केस ऑफ नॉन इसका सेंट्रल? मीन होगा k plus mu स्क्वायर, mu1 डैश होगा k plus mu स्क्वायर, mu2 डैश होगा k is degrees of freedom plus mu square, k is the degrees of freedom, yeah, and mu is the non-centrality parameter. वेरिएंस मुझे याद है, mu डैश mu2 डैश मुझे याद नहीं है. वेरिएंस तुम्हारा हो जाएगा 2 into k plus 2 mu square, ये हो जाएगा वेरिएंस. mu2 डैश आई थिंक k plus mu उसका होल स्क्वायर ऐसा है कुछ. हाँ, तो ठीक है सर. that in that case तो ये क्या है ना, if mu equal to 0 ना, देखो if mu equal to 0, that is equivalent to central chi square. Okay, यस सर. राइट. ये डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ो, नॉन सेंट्रल को मत छोड़ो, ठीक है? नॉन सेंट्रल चाहिए, नॉन सेंट्रल chi square, नॉन सेंट्रल f, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ना, गेट के पर्सपेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए. Okay, so now suppose we are having this, we are now discussing the v distribution of v. So v is distributed as chi square non-central with degrees of freedom 1. So now we will talk about our quadratic form. So suppose y follows, इसको छोड़ो, y follows normal mu comma sigma square I. Okay, mu is a vector and sigma is the matrix. So in that case, y dash ay, that will follow by sigma square, that will follow chi square with degrees of freedom r with non-centrality parameter lambda square. तो याद करो, if we have y follows normal 0 comma sigma square I, in that case y dash ay by sigma square, that will follow chi square with degrees of freedom r, that is a central chi square. And in that case, when we are having mu, we are having a non-central chi square where lambda square equals to mu dash a mu by sigma square. So if you are having y dash ay, that would follow chi square r with lambda square, where lambda square equals to mu dash a mu. That is also true. And why we are taking it? Because it is our SS residual, right? Sorry, image residual path. That is why
considering that sigma square. Okay, so now we are having this. Okay, and one more thing, from here, from equation 1, suppose y dash ay by sigma square follows chi square with degrees of freedom r and lambda square. If in that case, if a mu equals to 0, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है. इफ a mu equal to 0, that implies that will be followed central chi square. if a mu equal to 0, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी याद रख लेना, ठीक है. ये छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है. इन सब पॉइंट को, ठीक है. सो इफ a mu equal to 0, तो a mu का मतलब क्या है? A is the matrix सर and एक M is the mean क्वेश्चन था vector, सर. राइट. हाँ बताओ. सर एक्चुअली नॉन सेंट्रल जो पैरामीटर आप कह रहे हैं वो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू प्राइम ए म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर होगा कि म्यू प्राइम ए म्यू सिर्फ होगा? यही मेरा सवाल है. कौन सा पार्ट में? इक्वेशन 1 में ना. इक्वेशन sir. 1 एंड सेकंड पार्ट में आप लिखा है लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू प्राइम ए म्यू. वही मैं पूछ रहा हूँ म्यू प्राइम ए म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर होगा कि म्यू प्राइम ए म्यू सिर्फ होगा? इसमें ना, ये सेकंड वाला पार्ट में ना. यस सर, यस सर. हाँ, इसमें सिग्मा स्क्वायर नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि मैंने उधर नीचे सिग्मा स्क्वायर नहीं डाला है. ओके, उसी पार्ट में सिग्मा स्क्वायर आएगा नहीं. जो फर्स्ट इक्वेशन है सर, लैम्डा स्क्वायर म्यू डैश ए म्यू होता है कि डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर भी आता है? फर्स्ट इक्वेशन में कब समझ में नहीं आया, बताओ फिर से. सर वो कह रहे हैं लैम्डा स्क्वायर जो होता है म्यू डैश ए म्यू होता है, म्यू डैश ए म्यू डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर होता है कि म्यू डैश ए म्यू? Lambda dash is the non-centrality parameter that depends on the y. y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? देखो, ये जो पहला वाला लिया था ना, इन द फर्स्ट पार्ट, अच्छे से सुन लो, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखो नीचे सिग्मा स्क्वायर है, और Yes, जो sir, सेकंड तो पार्ट जो है. है इसमें सिग्मा स्क्वायर नहीं है ना, तो वो नॉन सेंट्रलिटी Okay, पैरामीटर में भी सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा. okay. Because sigma square is the constant here, right? Sigma square is the constant here. हम लोग क्यों sigma square ऐड करते हैं? क्योंकि in that case we will get a like residual term. The sum of squares due to residual वो हमको मिल जाता है ना, इसीलिए ऐड करते हैं, और कुछ नहीं. समझ में आया ना क्यों वो सिग्मा स्क्वायर नहीं है उधर सेकंड वाला टर्म में? Yes, sir. अरे लैम्डा स्क्वायर इज द non-centrality parameter. Okay, so that can be different for different distributions. क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. वो कौन क्वेश्चन मुझे पूछ रहा था, वो बताओ. सर मैं पूछ रहा था सर. एक और सवाल है सर, कब हम लोगों को पता चलेगा कि सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करना होगा और कब सिग्मा स्क्वायर से नहीं डिवाइड करना होगा? ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछे कि y स्क्वायर ए वाई बाई सिग्मा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा, ठीक है, ऐसा ही है. द थिंग इज, याद करो कि जब हम लोग किए थे कि एसएस रेसिडुअल वो क्या फॉलो कर रहा था, और एसएस रेसिडुअल बाय सिग्मा स्क्वायर क्या फॉलो कर रहा था, याद है? दोनों का स्क्वायर फॉलो कर रहा था ना. हाँ सर. You can write SS residual follows chi square sigma square. You can write that. ओके. क्योंकि SS residual जो PDF होगा उसमें पहले chi square होगा, उसके बाद बाकी PDF रहेगा. तो क्या डायरेक्टली से chi square फॉलो कर रहे हैं या फिर उसके साथ कोई कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है. जस्ट ये सब याद रखो. मैंने एक्चुअल जो फॉर्मेशन है, एक्चुअल जो
फॉर्मेशन है, दैट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेशन। मैंने थोड़ा एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि बाद में अगर कोई कंफ्यूजन आ जाए, तो इसलिए मैंने इसका एक ऐड कर दिया, वो भी गाइस का फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना। तो इसके आगे एक सिग्मा स्क्वायर भी बैठ जाएगा, समझ रहे हो, ये भी तुम ऐड कर सकते हो। हाँ, वो कांस्टेंट और कुछ नहीं, तो हटा देते हैं, कुछ जरूरत नहीं उसका भी, ठीक है। यस सर, और यस क्या सर। है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छे से एक बार देख लो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन साइज का जा रहा है, कौन सा एफ जा रहा है, ये सब अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये सब बहुत, मतलब ऐसा कोई भी सवाल हो सकता है जिसमें 4 ऑप्शन होगा, 1 2 3 4, उसमें बहुत 2-3 ऑप्शन है बहुत क्लोज होगा उसमें, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से याद नहीं रहेगा ना, तो उसमें फंस जाओगे। हाँ, और इसमें क्या होता है ना, अगर मल्टीपल सिलेक्शन होता है तो उसमें कोई पार्ट मार्किंग तो नहीं होता ना, अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है तो तुमको 2 ही करेक्ट करना होता है, ऐसे तो रूल है ना। तो याद रख लेना ये सब चीजें थोड़ा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, उसमें चलते हैं। सपोज वी हैव x that follows normal mu sigma, where sigma greater than 0, okay, that is a multivariate normal distribution. Now we have a quadratic form x dash a1x and another quadratic form x dash x. We have two quadratic forms, that is q1, that is q2. So q1 and q2 are independent if a1 sigma a2 that is equals to a2 sigma a1 that is equals to 0. This is very important corollary, you can remember that. देखो ये जो है ना, दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है, दोनों a1 वाला a2 अलग है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा है, सिग्मा जो है, अगर सिग्मा जो है वो ऐड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर हैविंग x follows normal mu comma 1, in that case a1 a2 are perpendicular, then it is 0। तो इधर सिग्मा हट गया ना, तो ऐसा ही होता है ना, दोनों दोनों x dash a1 x dash a2x, that too will be independent if a1 into a2 equal to 0, okay। जस्ट मैंने वो सिग्मा वाला टर्म ऐड किया इधर ऊपर में, ठीक है। इफ सिग्मा इक्वल्स टू 1 देन यू कैन राइट दैट, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट कब होगा, ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लेगा तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो ऐसा आ सकता है कि तुम लोगों को दे दिया कि कोई x का वैल्यू नहीं दिया, सपोज a1 एक मैट्रिक्स दे दिया, a2 अलग मैट्रिक्स दे दिया और सिग्मा एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। सो इन दैट केस यू कैन फाइंड a1 सिग्मा a2 करके देखो 0 आ रहा है कि नहीं, अगर 0 आ रहा है तो बोल दो इंडिपेंडेंट है। याद जाएगा ना ये टर्म, ये जो फॉर्मेशन है, बताओ। ये तो मल्टीवेरिएट का है ना सर? हाँ, ये ऊपर वाला मल्टीवेरिएट का है, ऊपर वाला। हाँ, ये भी कर सकते हो मल्टीवेरिएट फॉर्मेशन, मतलब फॉर एग्जांपल इफ सिग्मा इक्वल्स टू i, फिर आवाज कट अगर रही है। ऐसा आएगा तो if sigma equals to in, सुनाई दे रहा है, if sigma equals to in, in that case we can write this। आ रहा है, साउंड आ रहा है ना? यस सर। ओके फाइन, समझ में आया ना, ये जो इंट्यूशन है ये समझ में आ गया सबको? यस सर। फाइन, चलो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, ठीक है। कभी कभी आ गया तो मतलब याद रख लेना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ओके फाइन, तो अभी एक काम करते हैं, फिशर-कोकरैन थ्योरम को पता है? फिशर-कोकरैन थ्योरम क्या है? नो सर। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम लोग उसमें। पहले एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सपोज वी आर हैविंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x follows x in 0 in standard normal and x dash a to x. If x dash a1x follows chi-square तो follow कर रहा है ना, square central chi-square with any होगा, भी chi-square follow कर रहे हैं। रैंक ऑफ A1, रैंक ऑफ A2। हाँ, so in that case x dash a1 plus a2x that will also follow chi-square. Okay, and ये आ रहा है फिशर प्रोग्राम से, बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है, इफ बट सर a1 x डैश A1 x x डैश A2 x को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना? ये इंडिपेंडेंट है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, फिशर प्रोग्राम में भी ऐसा ही है, ये बाद मतलब में आएंगे A1 हम, ठीक है, A1 जस्ट A2 आप इक्वल्स टू सब 0 है। एज्यूम कर लो ये। हाँ हाँ, a1 a2 इक्वल्स टू 0 है। अभी अभी ये एज्यूम कर लो, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दिस थ्री इक्वेशंस 1 2 एंड 3। जो थ्योरम एक्चुअली में है इसमें कि इफ a1 plus a2 is idempotent, if a1 plus a2 is idempotent, then a1 square equals to a1, a2 square equals to a2. That means a1 a2 both are idempotent. That is very important. अभी फिशर प्रोग्राम में हम आया नहीं है, just think about it. If x dash a1x follows chi-square, x dash a2x follows chi-square, and x dash a1 plus a2x that also follows chi-square, and in that case, if a1 plus a2 is idempotent, then a1 and a2 both will be idempotent. ठीक है, that the thing, क्योंकि देखो इसका प्रूफ बहुत इजी है, वो हो जाता है इसका प्रूफ, लेकिन वो छोड़ो, अभी प्रूफ पे नहीं जाना है, जस्ट ये सब याद रखो, ठीक है, थ्योरम करके याद रख लेना, क्योंकि प्रूफ पे जाएगा तो फालतू में टाइम बर्बाद होगा। और एक और थिंग है, सपोज y follows normal mu comma sigma, sigma greater than 0. So in the previous case, if we are having x follows normal chi-square, that idempotent case, the idempotent theorem also hold. Okay, अगर ये भी चेंज हो गया, नॉन सेंट्रल भी हो गया ना, फिर भी जो आइडेंपोटेंट का प्रॉपर्टी था फिर से होल्ड ही करेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इट also holds for non central like chi-square case. Okay, so suppose now imagine we are considering y follows normal mu sigma and by is a vector. So B is a, suppose it is a P cross N matrix. B is P cross N matrix. Then By and y dash ay, if B sigma A equals to 0. Very important result है ये, ठीक है, we are not talking about two quadratic forms, we are talking about a vector and a quadratic form. Previously we have discussed here, कहाँ गया इधर, here we have this, what we have discussed, two quadratic forms, right? हेलो, दे रहा है ना, कहाँ चले गए,
गया सब. Hello, am I audible? Yes, sir. हाँ. So देखो, पहला जो था ना, पहला जो था, in that case we have discussed about two quadratic forms. Now we move on to one quadratic and one vector. Now that vector and the quadratic form are also independent if that condition holds. So B can be anything. B can be any vector. Okay. अगर कोई भी vector हो जाए, in that case also we can use this formula. Okay. So अभी तक इतना दूर तक हम लोगों ने बहुत क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का देख लिया. चलो अभी कोकरन्स थ्योरम में चलते हैं. ठीक है. So देखो, अभी suppose we are considering a distribution like suppose u1 u2 un. एकदम डायरेक्ट कोकरन्स थ्योरम में हम लोग चलते हैं. ठीक है. कोकरन्स थ्योरम क्या है? So suppose u1 u2 u3 un that follows normal 0 1. Obviously IID normal 0 1. Okay. And we can write u is a vector u1 u2 un transpose. And in that case, for every ui's there should exist a bi. For every ui there should exist a bi, that is b1 b2 dot bk symmetric matrices such that qi equals to u transpose bi u. That means if it is q1 means u transpose b1 u, q u transpose b2 u, q3 means u transpose b3 u. ऐसे ऐसे जितना भी quadratic formation हो रहा है qi, so इतना quadratic formation we have this quadratic formation. Okay. Also we assume that summation qi that is equals to u transpose u. So in that case the following statements are equivalent. So ये setup है. It is the setup. ui is as follows: normal distribution, normal 0 1. We have bi's, symmetric matrices, such that we have the quadratic formation of qi's. Okay. Now we have the following statement equivalent. So what are the statements? First statement is ri, summation of ri equals to n, where ri equals to rank of bi. That is ri. Ri is the rank of bi. उसका sum होगा n. Second, that is also very important. QIs are independent. जो पिछले प्रॉब्लम में हम देख रहा था ना थ्योरम में कि जो there are two q1 q2 they were independent, so every QIs are independent. And number 3 is the QI follows chi-square ri. So that QI will follow chi-square with degrees of freedom equals to the rank of bi. That also holds. So you can also write QI follows sigma square, or you can write QI by sigma square, not I, sigma square. Okay, QI by sigma square that follows chi-square ri. क्लियर हुआ अभी तक? बताओ, अगर कोई डाउट है बताओ. कोकरन्स थ्योरम यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी है सब देखेंगे. ये ठीक है ना अभी तक? हेलो
n क्या है सर? स्मॉल n बताओ क्या है? कहाँ small n. Some Small n rank is of that Sum of n. u1 u2 un. So we have n number of अच्छा uis. n समझे? यस सर। मतलब Fine. So कि now बताओ। एक इम्पोर्टेंट चीज है ठीक इसमें। है। So एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये 3-4 पॉइंट है, ये याद रख लेना। सपोज वी हैव z1 z2 dot 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 zn that follows normal 0 1। यू भी लिख सकते हो, z पे सेम ही है, जस्ट मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मैंने ये जो प्रॉब्लम है इसका प्रूफ मैंने इधर नहीं डाल रहा हूँ, बट ये जो प्रॉब्लम था मैं इसका पॉइंट नोट कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों को प्रूफ नहीं चाहिए, बट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने एक जगह से लिया था ये वाला, उसमें z करके नोटेशन था। ठीक है, सेम ही है। तो z1 z2 zn, suppose we have zx that follows normal 0 1, then can you tell me what will be the function of zi square? I square 1 I square 1, right? What will be the distribution of sum over I equals to 1 to n zi square? I I square square n n n. n And decreases freedom. what will be the distribution of zi minus z bar whole square I equals to 1 to n? इसका क्या होगा? हाँ, z बार तो 0 ही होगा। लो का स्क्वायर ही होगा ना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसका? n n minus 1 n माइनस 1। क्या n? ये तो डेविएशन है ना, डेविएशन है। तो एक जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ना, वो क्या होता है? देखो देखो समझ लो। ठीक है, सपोज वी हैव डेटा पॉइंट्स, these are the data points, okay? Yeah, the number of independent variable in the data, suppose this is zi, okay, and we have those zi's. So here we have all those values who are independent, right? Here we have all those values who are independent. Now consider a value. Z1. So now again we plot the data zi minus z1, where the axis is zi minus z1. So zi minus z1 का क्या आएगा? Suppose इसका वैल्यू ऐसा प्लॉट आ गया। Don't have the full degree of freedom. Why? Because we have already lost a independent value, which is z1. ऑलरेडी हम लोग क्या खो दिया है? z1 को खो दिया है। पहले z1 z2 zn all were independent, but in the case all zi's except z1 is dependent on z1. In the second plot, the first plot. In the second plot, look at the plot. In that plot, all the zi's except z1 are dependent on z1. Am I correct? क्या गलत है कि सही है? बताओ। हेलो, समझ नहीं आया? Am I audible? ठीक से सुनाई दे रहा है? यस सर। क्या समझ में नहीं आया ये जो मैंने समझाया? सोच रहे हो क्या? यस सर। बताओ कि क्या सोच रहे हो, बताओ इसमें। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बोले? देखो, इन द फर्स्ट डायग्राम, जो पहला जो डायग्राम है, हियर
we have, suppose we have n number of data points, z1, z2, z3 up to zn. Okay, here all those data points, they were independent because we have the values of zi, right? zi का जितना भी values था वो सब तो data point है, वो तो available है data, so obviously they are independent, right? So in that case we have the full degrees of freedom. Degrees of freedom matlab the number of independent variable in the data. Okay, now in the second plot we have a plot of zi minus z1. इसका मतलब क्या है, जितना भी वैल्यूज था उनमें से मैंने क्या किया है, z1 को माइनस किया है. तो कोई भी अगर ये तो ऐसा प्लॉट होगा, ये नेगेटिव भी होगा, कुछ कुछ कोई वैल्यू, राइट, कोई वैल्यू नेगेटिव भी आएगा obviously. So now what we are having the plot of zi minus z1. अभी तक ठीक है? Okay, fine. Now look at the data. In the data set, previously we have all n points which were independent. But in that diagram, in that data set of zi minus z1, the every data point are independent except z1. z2 is not independent of z1. z3 is not independent of z1. Q. Why? Because we have subtracted z1 with every of the data points. तो ये जो z1 point है ना, ये dependent point बन गया. That's why we lost our degrees of freedom. If you are taking z minus z bar, इसका whole square and sum, that means we have lost the degrees of freedom. If you are taking summation z bar whole cube, that is also similar, same. ये आवाज बहुत कट रही Am I है. correct? हाँ, हेलो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि if we are taking summation zi minus z bar whole square, इसका मतलब है we are losing 1 degrees of freedom. Yes, sir. Why? Because that z bar is the point. That point is not independent, Yes, sir. right? So that is the thing. So in that case, that's why we are having n minus 1 degrees of freedom. Similarly, इसको इरेज कर देते हैं. नहीं, ये छोड़ो, इसको इरेज कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है. आवाज आ रहा है ना अभी? Yes, sir. Okay, fine. So also we are having, suppose n into x bar minus mu whole square. That will follow. What will be the distribution of this? बताओ. Sir. Yes. What will be the distribution of this? xi follows normal. xi क्या Normal follow कर 0 रहा है 1. सेम इसमें जो कर रहे थे ना, ये सेम ही है, ठीक है. अच्छा, z करके लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा. चलो, इसका फोर्थ पॉइंट n into z bar minus mu z whole square. Chi-square, sir? Square an. right? Chi-square 1. n कहाँ से आ रहा है? एक ही तो वैल्यू है x bar, अच्छा. z bar, Okay. right? तो ये फॉलो कर रहा है chi-square 1. एंड दूसरा है 1 by n मतलब zi minus z bar उसका होल स्क्वायर. ये तो इजी है, ये फॉलो कर जाएगा 1 by n minus 1 और उसके बाद chi square n minus 1. ये तो जस्ट वो जो था ना सिग्मा स्क्वायर, ऐसा ही है, ऐड कर दिया मैंने. दिस इक्वेशन 1 and equation 2 are that clear? Right? So we are dividing 1 and 2. Okay, so we are getting n z bar minus mu whole square by 1 by n minus 1 summation z
I minus z bar comma n minus 1. That is also a very important result. ये प्रोग्राम थ्योरम से आता है ये वाला रिजल्ट भी. क्या याद रहेगा ना ये टर्म? Yes, sir. ओके फाइन. ठीक है चलो. ओके सर लास्ट पीडीएफ दिन हम लोगों ने सर पीडीएफ रिग्रेशन मॉडल. बताओ. सर वो ऊपर वाला पेज है ना, कंप्लीट नहीं हुआ. कौन सा बताओ? वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का सर पीडीएफ नहीं. नहीं नोट कर रहा है. यस. अच्छा नो ये सर, क्या A4 है ना? हो गया सर, मैं समझ गया बट नोट नहीं हुआ. अच्छा नोट कर लो. अरे तुम लोगों को तो ये डॉक्यूमेंट मिल रहा है ना? मैंने तो भेज दिया पूरा. अभी जितना करा है सब भेज दिया है ना? सर कंप्लीट हो गया. हो गया ना? ठीक है चलो. ठीक है ओके. ठीक है चलो एक और चीज करते हैं. रिग्रेशन आई थिंक याद है तुम लोगों को, राइट? नाउ सपोज we consider summation that is equals to summation yi minus y bar whole square plus summation yi उसका whole square by n. Can we write that? ये तो लिख सकते हैं ना हम लोग. ठीक है बताओ ठीक है कि नहीं ये? Yes, sir. ठीक है चलो. So now we are writing, suppose yi follows normal 0 1. Okay, so we are writing instead of yi square we can write y dash I y. Instead of summation yi dash, can we write it? Is it clear? क्या क्लियर है ना ये? यस सर. ठीक है ओके. And instead of this can we write y dash I minus y बार को हम ऐसे लिख देते हैं 1/n j into y. J is a function. Okay. J is that sum part. Okay. That means वो जो y bar टर्म है उसी को समेशन y लिख सकते हैं ना. समेशन y उसी को मैंने लिखा है j करके. And in that part we can write yi 1/n j y. इसको एक रिग्रेशन मॉडल जो है उसी को एक्सप्लेन करके हम लोग इसको जगह पे पुट कर दिया है इसको. ओके सो इन दैट केस that term will follow chi square in that term will follow sigma square chi square minus 1. That term will follow sigma square chi square 1. देखो जो मैंने लिखा है सही है कि गलत है? बताओ ये सही है कि गलत है? एक्चुअली वाई तो नॉर्मल 0 1 फॉलो कर रहा है ना. हाँ हाँ एकदम वाई नॉर्मल 0 1 0 i फॉलो कर 0 i 0 I. हाँ y वेक्टर है वो फॉलो करे नॉर्मल 0 i. तो सिग्मा स्क्वायर क्यों आना चाहिए आपको? सिग्मा स्क्वायर में आना चाहिए. अच्छा सिग्मा स्क्वायर को ऐड कर दो फिर. हाँ सिग्मा स्क्वायर
सिग्मा सिग्मा स्क्वायर मैंने स्क्वायर ऐड यहाँ कर दिया पे उधर 1 है ना, यहाँ पे कर दो y कर दो n 0 सिग्मा कर दो, ठीक है। हाँ सिग्मा स्क्वायर छोड़ो, सिग्मा स्क्वायर लिखना नहीं है मुझे, ठीक है, छोड़ो सिग्मा स्क्वायर को छोड़ो, वो तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा ना, उसको छोड़ो। ऐसा ले लो एजम्पशन में y फॉलोस नॉर्मल 0 i, ठीक है, और ये सिग्मा स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे बताओ पहले इधर, ये अभी ठीक है ना ये y डैश i हाँ, बोलो। माइनस b अपॉन n y का स्क्वायर n माइनस 1 कैसे फॉलो कर रहा है? इसमें एक वाला जो y बार जो टर्म है ना, 1 डिग्री से भी हट रहा है उसमें। टोटल नंबर ऑफ n था, n से एक्चुअली सर जे इसका क्या अगर है, ये जो मैट्रिक्स होगा, जे क्या है सर यहाँ J पे, is a matrix, J is another matrix, J is एंट्रीज another क्या है, matrix। देखो ये जो है ना, व्हाट आर द एंट्रीज, रुको, J एंट्रीज ऐसा होगा उसमें, देखो y बार क्या मतलब क्या है, yi माइनस y बार, इसका मतलब है yi माइनस 1/n समेशन yi, राइट। तो भी मल्टीप्लाई होगा, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ना yi स्क्वायर का, इसका मैट्रिक्स बनेगा yi माइनस y बार इंटू i इंटू ट्रांसपोज yi माइनस y बार। अभी मैंने क्या किया ना इसमें, इसका वैल्यू होगा y1 माइनस y बार y2, सॉरी गलत लिखा है मैंने, इक्वल्स टू स्क्रीन इज हैपनिंग, 1 माइनस y बार होल स्क्वायर, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, y1 माइनस y बार इंटू y बार, ऐसे ऐसे करके लिखा है, पूरा मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगा। विजिबल नहीं है देखो, हाँ बता दो जब भी विजिबल नहीं होगा ना, बता देना मुझे, ठीक है। ऐसा क्यों चाहता है सर, नेटवर्क के कुछ और इशू है, फिर शेयर कर दे मैंने, हाँ बोलो सर ऐसा स्क्रीन वाला क्या है, ऐसा बताओ क्यों हो क्या पूछ जाता है रहे थे। बार बार, मेरा हाँ सर वो चार्ज जे, देखो, ऊपर ऊपर जो चार्ज है ना, चार्ज का पोर्शन देखो 2% चार्ज हो गया है, इसके वजह से ऐसा है, ठीक है। सर चार्जिंग लगाए तब भी कम हो रहा है, हाँ वही, अभी तो 5% था, 2% कैसे हो गया, क्योंकि मैंने ना वो 5G इधर का जो हमारा जो आईडी का वाईफाई है, वो बहुत जल्दी चार्ज खाता है, ठीक है। कि पता नहीं क्या ये बीटेक वाले क्या करके रखा है इसमें, इंटरनेट में कुछ कुछ ना कुछ करके रख देता है ये लोग, ठीक है, और हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। मुझे पता नहीं होता है ना क्या क्या किया है इन लोगों ने, बीटेक वाले बच्चे अच्छा ने सब, ठीक बीटेक है। वाले साथ रखते हैं क्या, हाँ कोई कोई है साथ, मतलब कोई कोई ईआर है इसमें, ठीक है, पीएचडी के साथ, मतलब बहुत सारा जे हॉस्टल है वाला ना, सर, 5-6 हॉस्टल। हाँ हाँ जी वाला, ठीक है। देखो अभी आई थिंक चार्ज भी खत्म हो गया और 11 भी बज चुका है ऑलमोस्ट, 10:54 आया हुआ है। देखो ये जो टर्म है, हाँ एक बार फिर से बोल देते तुम लोग, ये मैंने किया है ना मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स से ये वाला टर्म आ रहा है, इसका वैल्यूज क्या होगा ना, इसका वैल्यूज होगा, मुझे देख चेक करके बताना पड़ेगा एक बार इसका। सर आई probably थिंक in ये जो cross in order का all entries will be 1, in cross in order का all entries will be 1, ऑल ये एंट्रीज तो मैट्रिक्स। 1 नहीं होगा, जो डायगोनल है, डायगोनल जो वैल्यूज होगा ना, वो तो अलग होगा। नहीं नहीं सर, ऐसे करके तो हो जा रहा है सर, अगर 1 लेते हैं हम लोग तो हो जाता है सर। ठीक है देखो एक बार तुम लोग, एक बार इसको घर पे, एक्चुअली ठीक सर है क्या, गेट में एक ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया था सर, हाँ वही 2020 में।
हाँ, वहां पर भी इसीलिए मैंने वो जो इसको जे रिपीट था कर ना रहा हूँ वो मैं। ऐसे ही था, मतलब ऑल एंट्रीज विल बी वन देयर। हाँ, तो इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया, मतलब ये वाला टर्म कभी भी आ सकता है वो ना फिर से भी। तब फिर ऐसे हो जाएगा, तब इसका रैंक निकालेंगे, रैंक n-1 हो जाएगा, वो जो आपने ये थ्योरम बताया रैंक था होगा x डैश ax n-1, का यस, फॉलोज ये का होगा स्क्वायर रैंक ऑफ a, तो इसका रैंक आ जाएगा i-1/n, हाँ रैंक 1 आ जाएगा। हाँ तो सारा एंट्रीज 1 हो जाएगा, तो हाँ ये आइडेम्पोटेंट नहीं मैट्रिक्स होगा। बन जाएगा, 1/n 1/n सारा एंट्रीज हो जाएगा, फिर तो रैंक 1 ही न रह जाएगा। और ये जो है टोटल जो मैट्रिक्स का है वो है आर का वैल्यू हुआ n। तो एक्चुअली ये एक्चुअली जो आइडेम्पोटेंट मैंने होगा। इसमें आ रहा था कि ये जो है एक है एसएस, क्या सर? हाँ ये जो ऐड करने जा रहा था ना, इसमें है एक है एसएस रेसिडुअल, एक एसएस रिग्रेशन, और ये जो टर्म एसएस टोटल। है ये है एसएस टोटल। समझे अभी ये क्यों मैंने इसको ऐसे ऐड किया? और यस ये सर। तो काई स्क्वायर जो है उसके वजह से हम लोगों को एफ मिल रहा था, जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एस एस रेसिडुअल, सॉरी रिजन बाय रेसिडुअल, ये डिवाइड बाय दिस इक्वल्स टू एफ आ रहा था, तो वही ये इसके वजह मतलब से मैंने इसको ऐड किया था। हाँ बताओ। ये मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर है या मैट्रिक्स है? जे वाला नहीं, जे वाला मैट्रिक्स है, क्योंकि y जो है y इज अ वेक्टर, y इज दैट y ट्रांसपोज शुड बी 1 क्रॉस n, ओके, दैट y शुड बी, समझ में आएंगे? ठीक है, यस सर। देखो ये ये जो y ये मैट्रिक्स कैसे होता है, मतलब वो डैश है दैट इज, तो यही लिखेंगे जे मैट्रिक्स कैसे हो रहा है। ये एक्चुअली क्या है ना, मैंने इधर पूरा किया नहीं है, जस्ट देखो इधर जो वाई आई माइनस वाई बाय होल स्क्वायर है उसको दो साइड में मैंने y को निकाल लिया है, तो बाकी जितना भी 1 1 1 करके जितना भी होगा ना 1 1 1 करके सब इधर आ जाएगा, और y है तो ये होगा 1 1/n, 1 - 1/n, ऐसे करके जितना भी वैल्यूज होगा वो आ जाएगा। ये टोटल का कुछ है इसमें, अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाकी है अभी इसका, हाँ एक और थोड़ा बैठना पड़ेगा, कल बैठ जाएंगे। ठीक है ना अभी तक? अभी सर टाइम है, सर का क्लास नहीं होगा ना। क्लास नहीं होगा ना? हाँ क्लास नहीं है। और क्लिक है ना, तो फिर एक काम करेंगे, तुम लोगों को एक नोट दे देंगे, ठीक है, कुछ नहीं है, जस्ट एक टेस्ट है जिसमें नाला वो नहीं सर, को चीज क्लास पकड़ अभी लेते हैं नहीं ऐसे है, तो करके, क्लास आप एक्सटेंड ऑल कर बीटा सकते आई, हैं। अभी इसको कंटिन्यू करें क्या अभी रात को? अभी कोई क्लास नहीं है, अगर कुछ छूट रहा है तो। और सर वो क्वेश्चन में नहीं भी आज डिस्कस छोड़ नहीं देते हुआ। आज छोड़ देते इसको, ठीक है, क्योंकि 11 हो गया है और मुझे नहीं लगता कि और किसी से, मुझे अभी डिनर भी नहीं किया मैंने अभी, इतना देर हो गया है। तो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। नोट तुम लोगों को दे ही देंगे एक, ठीक है, अगर
एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर किसी को बहुत डिटेलिंग से पढ़ना है रिग्रेशन एनालिसिस को, बहुत मतलब जितना डिटेल हो सकता है, तो एक होता है, एक आईआईटी कानपुर का एक सर है सलक सर बोल के, उसका नोट अवेलेबल होता है इंटरनेट में। सलक सर, वो बहुत, सलक सर बहुत अच्छा, उसका लेख बहुत अच्छा है। बहुत डिटेलिंग में, लेकिन गेट के लिए उतना डिटेलिंग नहीं चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थियोरिटिकल चीज है उसमें। हाँ, और बुक भी है थोड़ा 2-3, ठीक है। ऐसा उतना डिटेलिंग में मत जाओ, फंस जाओगे, क्योंकि एक टॉपिक से 5-6 मार्क्स आ रहा है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसके लिए तुम अगर यस सर। बहुत डिटेल स्टडी करोगे ना, तो टाइम फालतू में बर्बाद होगा, प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट दे दो, बढ़िया से कर लो, ठीक है। तो वही बात है। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर ये भेज देंगे तुम लोगों को, ये वाला डॉक्यूमेंट। और ठीक है फिर, थैंक यू। ओके ओके।